दादा देखो मार्चे दिखा रहे हैं आपको शुभेंदु अधिकारी। हालांकि नामांकन में अभी देर है, लेकिन वो ताल ठोक चुके हैं। She is scared. Her appeasement politics now reverse. For that reason, she is uttering wrong Hindu mantra. That's right. And she's staying here in Nandigram as well. She has rented a house As a guest. Yes. But you think that she's an outsider? She's an outsider here in Nandigram. She always said Prime Minister outsider. Yeah. For that reason, people of Nandigram are telling that she is also outsider. And is there any chance of her winning? How confident are you? How confident are you of winning Nandigram? It's a prestige battle. Nah, it's a political battle. BJP must win this seat with mammoth margin. Is it a symbolic battle? Is it a symbolic fight? Nandigram symbolic fight? Will it No, send no. a message to West Bengal, or entire Bengal? No, it's obviously it's a colorful fight in between TMC and BJP, but it's not an individual fight. It's a completely political fight. And ideological as well? Obviously, It will send a message. against a great opportunist of Bengal. You said that Mamata Banerjee never came here after Ampan, but she went to Abhishek Banerjee's constituency. She came here after 5 years gap. When election, on the eve of election, she came here and delivered her speech, and only to collect vote. Are you saying she's opportunist? Guided people. Is completely opportunist. Shubhendu, she is saying that she gave you the responsibility for Nandigram and that has not happened. I mean, she says whatever has not happened in Nandigram. Yes. For that reason, the education department incorporated Singur in their syllabus, books. But Nandigram left out. Those police officers organized genocide-like incident in 40th March 2007. Mamata Banerjee gave them promotion extension. One, Mr. Arun Gupta, IPS. Second, Mr. Tanmay Rai Chaudhary. Everybody honored them. Shubhendu, she says she's a tigress. How do you describe yourself? Huh? Mamata Banerjee says she's the Royal Bengal tigress. How do you describe You yourself? said you're the son of the Herself declared Royal Bengal Tiger. Yes. She says she's fighting like a Royal Bengal tigress. How do you? How are you fighting? Please keep patience. 2nd May, please come in my house and take some sweet. Thank you, Shubhendu. Thank you so much, Shubhendu. Thank you. तुष्टिकरण का आरोप लगाया है शुभेंदु अधिकारी ने। ममता बनर्जी पर तुष्टिकरण का आरोप लगाते हुए कहा कि वो प्रधानमंत्री को बाहरी कहती हैं। यदि अगर नंदीग्राम के लोग ममता बनर्जी को बाहरी कहें तो क्या होगा? जमकर आरोप पर आरोप शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर लगाए हैं। कहा है कि ममता बनर्जी तुष्टिकरण करती हैं। कहा है कि ममता बनर्जी का मंदिर जाना दिखावा है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता बनर्जी से वो लड़ रहे हैं, और शुभेंदु अधिकारी ने यह भी कहा कि ममता बनर्जी को हराएंगे, नंदीग्राम की जनता यहां से हराएगी। तो शुभेंदु अधिकारी की पहली प्रतिक्रिया, ममता बनर्जी के नामांकन दाखिल करने के बाद शुभेंदु अधिकारी की ये पहली प्रतिक्रिया है। वो अपने घर के बाहर जब पहुंचे तो वहां पर उनके समर्थकों की भारी भीड़ जमा थी। दफ्तर का उद्घाटन करने के बाद जब वो निकले वहां से तो भारी भीड़ वहां पर जमा थी। पत्रकारों से बातचीत करते हुए शुभेंदु अधिकारी ने, जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं, 12 तारीख को वो नामांकन अपना दाखिल करेंगे। ममता बनर्जी ने आज अब से कुछ देर पहले अपना पर्चा भर दिया है। ममता बनर्जी पिछली बार टीएमसी का गढ़ बने नंदीग्राम, लेकिन वो शुभेंदु अधिकारी जो टीएमसी के टिकट पर यहां से चुनाव जीते थे, अब वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। उन्हीं के खिलाफ चुनाव मैदान में यहां पर खड़ी हुई हैं। लोगों से मिलते हुए शुभेंदु अधिकारी, गरीब महिला उनसे किसी बात की गुहार लगा रही है, उनसे चिपट रही है, पूछ रहे हैं क्या। सुनिए। क्यों रो रही है? इमोशनल हो गई। बहुत दिन बाद बोला। अरे नहीं, बहुत दिन बाद बोला। काल के देखा शिवरात्रि नंदी, सुना चलो शिव मंदिर। प्रधानमंत्री का नाम लिया।
प्रधानमंत्री मोदी का आपने नाम लिया। प्रधानमंत्री मोदी आप चाहते हैं वो यहाँ नंदीग्राम आए क्या? प्रधानमंत्री ये मेरा इंडिविजुअल है, पार्टी बीजेपी दफ्तर के बाहर, ये नया बीजेपी दफ्तर है जो उसके बाहर निकलते हुए शुभेंदु अधिकारी वहां पर मौजूद अपने प्रशंसकों से मिल रहे थे। लेकिन ये ममता बनर्जी का नामांकन दाखिल करने वाली तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये दो पश्चिम बंगाल के राजनीति और इस चुनावी विधानसभा चुनाव की लड़ाई के सबसे महत्वपूर्ण चेहरे हैं। और ये तस्वीर ममता बनर्जी के नामांकन की हम आपको दिखा रहे हैं। ममता बनर्जी पर्चा भर चुकी हैं। आज सुबह मशहूर शिव मंदिर में पूजा पाठ करने के बाद, पूजा अर्चना करने के बाद ममता बनर्जी पहुंची और उन्होंने ये पर्चा दाखिल कर दिया है। तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। पहले वो शिव मंदिर जाती हैं, वहां पर पूजा अर्चना करती हैं और उसके बाद अपना पर्चा दाखिल करती हैं। वो ममता बनर्जी जिन पर मुस्लिम तुष्टिकरण के लगातार आरोप लगते रहते हैं और अब से बस कुछ ही पल पहले शुभेंदु अधिकारी ने भी एक बार फिर से उन पर तुष्टिकरण का आरोप लगाया है। आइए सीधे इंद्रजीत कुंडू हमारे संवाददाता के पास आपको लिए चलते हैं। इंद्रजीत, शुभेंदु अधिकारी आए और पहला शब्द उन्होंने अपीजमेंट का कहा, पहला शब्द उन्होंने तुष्टिकरण का कहा। लेकिन क्या ममता बनर्जी अब लगातार शिव मंदिर नामांकन से पहले जाना, लगातार मंदिर मंदिर जाकर कहीं ना कहीं बीजेपी को सॉफ्ट हिंदुत्व की जगह एक हार्ड हिंदुत्व के तौर पर टक्कर दे रही हैं? जी हाँ, सही। देखिए, इस चुनाव में सब जितने भी इश्यूज है, सब इशू को पीछे छोड़कर इस वक्त धर्म की इशू सामने आ गई। आप देख रहे हैं दोनों ही पार्टियां और दोनों ही हाई प्रोफाइल कैंडिडेट किस तरह से धर्म की राजनीति में उतर चुके हैं। शुभेंदु अधिकारी जब आज यहां पे आए अपने पार्टी ऑफिस को उद्घाटन करते हुए, सबसे पहले उन्होंने हनुमान जी का शरण में उन्होंने फूल चढ़ाया। उसके बाद उनके पार्टी ऑफिस में आज भारत माता की पूजा हो रही थी। और जब हमने पूछा कि आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आपकी प्रतिद्वंदी कभी आपके बॉस हुआ करते थे ममता बनर्जी, वो भी मंदिर में जा रही हैं आज, तो उन्होंने कहा ये कुछ नहीं, ये तुष्टिकरण की राजनीति है। ममता बनर्जी को आज हिंदू मंत्र 10 साल के बाद इसलिए याद आ रही है क्योंकि बीजेपी इस तरह से पश्चिम बंगाल में एंट्री ले चुकी है। शुभेंदु अधिकारी का यह कहना है कि ये पूरी से पूरा जो अपीसमेंट पॉलिटिक्स है, जिसको लेके बीजेपी ममता बनर्जी को घेरने की कोशिश कर रही है, उसी को किसी ना किसी तरह से काउंटर करने की एक डेस्परेट अटेम्प्ट ममता बनर्जी से है। और यही कारण है कि आज नॉमिनेशन फाइल करने से पहले उन्होंने मंदिरों का शरण ले रही है। दूसरे ओर पे जब हमने शुभेंदु अधिकारी का यहाँ पे स्पीच देखा नंदीग्राम में, जब वो अपने चुनाव कार्यालय को उद्घाटन करने के बाद अपने लोगों से मिल रहे थे, तब उन्होंने ये भी कहा कि अगर तृणमूल सत्ता में फिर से वापस आती है, अगर ममता बनर्जी फिर से मुख्यमंत्री बन जाती है, तो हिंदुओं पर काफी आक्रमण होने वाला है पश्चिम बंगाल में। उन्होंने ये भी कहा कि नंदीग्राम में, क्योंकि यहाँ पे हिंदू कम्युनिटी भी है, उसके साथ साथ मुसलमान भी, संथाल लघु संप्रदाय के लोग भी काफी संख्या में है। उन्होंने कहा कि उस वोट को टारगेट करना चाहती है ममता बनर्जी, लेकिन वो सभी से मिल रहे हैं। और कुछ देर पहले यह नंदीग्राम बाजार है, यहां से जब वो जा रहे थे सब लोगों से मिल रहे थे और हमें ये भी कहा कि यहाँ पे जो मुस्लिम संप्रदाय है वो भी उनको समर्थन करते हैं। तो देखिए, चूंकि अभी चुनाव है और हाई प्रेस्टीज बैटल है नंदीग्राम में, एक जिसे कहते हैं नर्व वॉर दोनों ही नेताओं के बीच में चल रहा है, इसीलिए दोनों ही ऑप्टिक्स का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, सिंबॉलिज्म का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और शायद यही कारण है कि दोनों ही अभी मंदिर जाते हुए दिख रहे हैं। तो अब इंद्रजीत, क्या ये मान लें, क्या आप ये कह सकते हैं कि इंद्रजीत अब ये सीधे सीधे बंगाल चुनाव जो है वो हिंदू वोटों पर ज्यादा फोकस हो गया है? जी हाँ, बिल्कुल। अब जब 2019 का लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया था, तभी से ये सबको, जो जितने भी राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, नेता हैं, उन सबको ये पता चल गया था कि कहीं ना कहीं हिंदू वोट की कंसोलिडेशन करती हुई दिख रही है बीजेपी की तरफ। और यही कारण है कि ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस को डर है कि उनका हिंदू वोट खिसक ना जाए, क्योंकि ममता बनर्जी का जो और पश्चिम बंगाल के अगर चुनावी राजनीति, ठीक है इंद्रजीत, हम दोबारा आपके पास आएंगे। हमारे संवाददाता इंद्रजीत कुंडू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन ममता बनर्जी ने पर्चा दाखिल कर दिया है। शुभेंदु अधिकारी ने एक बार फिर से उन पर तुष्टिकरण का आरोप लगा दिया है। जब पर्चा दाखिल करने से पहले हमारी संवाददाता, हमारी साथी चित्रा वहां पर मौजूद थी। देखिए।
दीदी अब बाहर निकल रही है। ये देखिए सभी का हाथ जोड़कर अभिवादन यहाँ पर दीदी स्वीकार करते हुए भारी तादाद में महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं और दीदी अब मुलाकात करने के लिए जा रही हैं। ये देखिए तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं किस तरह से ममता बनर्जी अब मुलाकात करने के लिए जा रही हैं आगे की ओर। भारी तादाद में यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो उनसे मुलाकात करने के लिए आई हैं और सभी का हाथ जोड़कर यहाँ पर अभिवादन ममता बनर्जी स्वीकार करते हुए नजर आ रही है। यकीनन पूजा पाठ के बाद आरती करने के बाद दीदी अब यहाँ पर सीधे ये दूसरा छोटा सा मंदिर है वहां पर सत्या अंदर की तस्वीरें दिखाई है। यहाँ पर दीदी अंदर पहुंच गई हैं पुजारी से अब वो हाथ जोड़कर कुछ कहती हुई नजर आ रही है जैसा कि तस्वीरों में मैं देख पा रही हूँ। और अब वो सीधे अंदर जाकर भगवान के हाथ जोड़कर अभिनंदन करते हुए सत्या आप ये तस्वीरें दिखाइए। देखिए एक तरफ भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना आरती और यहाँ पर टीका लगाते हुए पुजारी जी नजर आ रहे हैं और तमाम दूसरे भी पुजारी हैं जो ममता दीदी से बात कर रहे हैं। ममता बनर्जी के हाथ में प्रसाद है और वो प्रसाद अब हाथ में लेने के बाद ममता दीदी इस वक्त पुजारियों से बातचीत कर रही है और उसके बाद अब सीधे निकलते हुए उनके दोनों ही हाथ में जैसे कि आप देख पा रहे हैं प्रसाद है और यहाँ पर जो महिलाएं खड़ी हुई हैं दीदी ने वो प्रसाद उन लोगों को दे दिया और फिर हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार करने के बाद अब यहाँ पर निकलते हुए पैदल ही दीदी जा रही हैं। दीदी आप कुछ बोलेंगी? दीदी क्या मांगा आपने, क्या मांगा? और अब ममता बनर्जी यहाँ से सीधे आगे की ओर बढ़ती हुई काफी ज्यादा भीड़ है और ममता बनर्जी की एक झलक पाने के लिए सभी बेकरार नजर आ रहे हैं। आरती पूजन पाठ के बाद ममता बनर्जी अब यहाँ से बाहर की ओर निकलते हुए अपने आप में आज का ये दिन महत्वपूर्ण ममता बनर्जी के लिए। एक तरफ भगवान भोलेनाथ के दर पर जाकर उन्होंने हाजिरी लगाई तो वहीं दूसरी तरफ एक दूसरे छोटे से मंदिर में जाकर भी उन्होंने पूजा अर्चना की और अब ममता बनर्जी यहां से निकल गई हैं। तो लगातार हमारे दोनों संवाददाता नंदीग्राम से इंद्रजीत और हल्दिया अब आपको लिए चलते हैं सूर्याग्नि रॉय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूर्याग्नि, जिस तरह से ममता बनर्जी ने पर्चा भरा, शिव मंदिर गई, उसके बाद शुभेंदु अधिकारी उन पर फिर से तुष्टीकरण का आरोप लगा रहे हैं, तो अब जब पर्चा भर चुकी हैं, सबसे हॉट सीट नंदीग्राम बन चुकी है, क्या मुद्दा सिर्फ हिंदू मुसलमान है या कुछ और भी है? देखिए, अगर तृणमूल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो तृणमूल का दावा है कि बीजेपी के पास हिंदू मुसलमान डिवीजन छोड़ के और कोई मुद्दा है नहीं इस चुनाव में, इसीलिए शायद बीजेपी सिर्फ ये हिंदू मुसलमान का कार्ड खेलती है। लेकिन ममता बनर्जी का दावा है कि उनके पास डजन ज्यादा से भी ज्यादा टॉपिक्स है, इश्यूज है जिनको लेके वो बात कर सकती है। ममता बनर्जी कहती है कि पिछले 8-9 सालों में उनके गवर्नमेंट ने जो भी काम किया है वो पिछले 34 साल के वामफ्रंट लेफ्ट रिजीम के अंदर हुआ है नहीं, और उसी को देखते हुए लोग, जनता उनको थर्ड टाइम फिर से नॉमिनेट करेंगी, फिर से इलेक्ट करेंगी। यहाँ पे मैं आपको एक नजारा दिखाना चाहूंगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरे कैमरा पर्सन को एक बार पैन करके दिखाने के लिए। यही वो सेंटर है, एसडीओ का सेंटर है, जहां पर ममता बनर्जी अपना नॉमिनेशन फाइल कर रही हैं। यहाँ पर वो अंदर है, नॉमिनेशन फाइल कर रही हैं। शायद जो हमें समझ में आ रहा है कि जब वो निकलेंगी यहाँ पे कुछ वार्ता देगी, क्योंकि पहली बार ये शायद उनके पॉलिटिकल करियर में वो साउथ कोलकाता की सीट को छोड़कर, जो भवानीपुर का सीट है, अगर हम उनका लोकसभा का हिस्ट्री देखें तो वो जादवपुर से लड़ी है, उसके बाद वो साउथ कोलकाता से ही लड़ी है, और अगर हम लेजिस्लेटिव असेंबली का हिस्ट्री देखें तो वहां पर भी वो सिर्फ भवानीपुर जो साउथ कलकत्ता में होता है वहीं से वो लड़ी है। लेकिन उनके पॉलिटिकल हिस्ट्री में ये शायद पहली बार है कि वो अपना गढ़, जिसको साउथ कोलकाता कहा जाता है, उसको छोड़कर वो नंदीग्राम आई है, जो अधिकारियों का गढ़ माना जाता है। 2016 में भी शुभेंदु अधिकारी जो तृणमूल में थे उस जमाने में, वहां पर वो उन्होंने ये सीट जीता था, हालांकि वो तृणमूल में भी थे तब। लेकिन इस बार शुभेंदु बनाम ममता एट नंदीग्राम जो ये हो रहा है, वो सारा का सारा इसी बिल्डिंग से ऑफिशियली शुरुआत उसका हो चुका है, क्योंकि ममता बनर्जी ने अपना नामांकन ऑलरेडी वो कर रही हैं और शायद कुछ देर बाद आके वार्ता दे। बैक टू यू। तो लगातार हम हमारे संवाददाताओं से बात भी कर रहे हैं। ये तस्वीर वो तस्वीर है जो बीजेपी को एक चुनौती देने के बाद
यहां से नामांकन का फैसला, यहां से चुनाव लड़ने का फैसला, नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का फैसला। लेकिन ये दूसरी तस्वीर भवानीपुर से है जो ममता बनर्जी की सीट है, यानी कि ममता बनर्जी 2016 में जहां से चुनाव लड़ी थी विधानसभा का और जहां से विधायक इस समय है मौजूदा वो भवानीपुर है। तो भवानीपुर से पर्चा भरने वाली ये तस्वीर है और 2021 की तस्वीर, यानी कि आज अब से कुछ देर पहले जब उन्होंने पर्चा भरा। ये 5 साल पहले और 5 साल बाद, यानी कि आज की मौजूदा तस्वीर और 5 साल पहले की तस्वीर है। ये कहा जा रहा था कि ममता बनर्जी भवानीपुर और नंदीग्राम दोनों जगह से चुनाव लड़ेंगी, लेकिन ममता बनर्जी ने कहा कि नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ नंदीग्राम से चुनाव लड़ूंगी। तो बीजेपी को यह कहने का कि ममता डर गई हैं, ममता 2 जगह से चुनाव लड़ रही हैं, अपनी सीट बचाने के लिए उन्हें हार का डर है, वो आरोप को उन्होंने खारिज कर दिया। उस आरोप का उन्होंने जवाब दे दिया और सिर्फ नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का उन्होंने फैसला किया। ममता बनर्जी ने यह भी कहा क्योंकि अब ये सीट खाली हो गई है, यानी कि नंदीग्राम सीट उनकी खाली हो गई है, शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, इसलिए उन्होंने यहां से लड़ने का फैसला किया। और जब वो गई तो एक भावुक भाषण में उन्होंने ये भी कहा कि आप लोग बताइए नंदीग्राम के लोगों से कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं। खैर, फिलहाल वो नामांकन कर चुकी हैं, चुनाव लड़ रही हैं और आज सुबह से जबरदस्त हलचल नंदीग्राम में है। हमारी सहयोगी चित्रा हर हलचल पर नजर बनाए हुई हैं, उनकी एक रिपोर्ट। ममता बनर्जी अंदर पूजा पाठ कर रहे हैं, सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आपको बता दें कि मंदिर में भी काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई है और जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास हैं। यहाँ पर ममता बनर्जी शिव मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दे रही हैं। महिलाएं भी भारी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं जो ममता बनर्जी की एक झलक पाने के लिए बेकरार दिखाई दे रही हैं। और दीदी यहाँ पर अंदर शिव मंदिर में जलाभिषेक कर रही हैं भगवान भोलेनाथ की। जिस तरह से पूजा अर्चना की जाती है वो मंदिर प्रांगण की तस्वीरें चारों तरफ से दिखाई। इधर आइए सत्या, बाहर किस तरह से लोग यहाँ पर इंतजार में बैठे हुए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सभी लोग इस वक्त बाहर मौजूद है, मीडिया का भी यहाँ पर काफी ज्यादा जमावड़ा है और यहाँ ममता बनर्जी अंदर पूजा पाठ करते हुए दर्शन करते हुए दिखाई दे रही हैं। भोलेनाथ अपने आप में कहा जाता है कि भोलेनाथ की पूजा से जितने भी आपकी इच्छाएं हैं वो सारी पूरी हो जाती हैं और यकीनन ममता बनर्जी तीसरी बार हैट्रिक लगाना चाहती हैं, इसीलिए अंदर भोले बाबा की पूजा अर्चना में इस वक्त ममता दीदी लीन हैं। लेकिन इस पूजा पाठ के जरिए क्या तीसरी बार भी वो हैट्रिक लगा पाएंगे, अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन दीदी पूजा पाठ करने के बाद यहाँ से सीधे पहुंचेंगी हल्दिया और वहां पर करेंगी नामांकन। भगवान से यही आशीर्वाद मांगेगी कि न सिर्फ नंदीग्राम से उनकी शानदार जीत हो, जैसा कि टीएमसी के लोग कह रहे हैं कि 1 लाख से ज्यादा वोटों से हराएंगे ममता बनर्जी। वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चलें कि उनकी ओर से कोशिश इस बात की भी की जा रही है कि ममता बनर्जी तीसरी बार न सिर्फ हैट्रिक लगाएं बल्कि यहां से इस तरह शानदार जीत हासिल करें जो अब तक इतिहास में नहीं हुआ है। लेकिन बीजेपी जैसी पार्टी के सामने क्या ये इतना आसान होगा, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। आरती शुरू हो चुकी है, आरती शुरू हो चुकी है, जैसा कि इस वक्त आप सुन पा रहे हैं। आरती की धुन है और अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण आज की ये तारीख ममता दीदी के लिए, जब आरती पूजा पाठ के बाद वो सीधे पहुंचेंगे हल्दिया और वहां पर करेंगे अपना नामांकन। कैमरा पर्सन सत्या के साथ चित्रा त्रिपाठी, नंदीग्राम आज तक। तो ममता बनर्जी ने अपना पर्चा भर दिया, नामांकन उन्होंने दाखिल कर दिया। नामांकन दाखिल करने से पहले वो 1000 साल पुराने शिव मंदिर, सिद्ध शिव मंदिर पहुंची। वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की, पैदल वो पहुंचकर नॉमिनेशन सेंटर पहुंची, पैदल चलकर वो मंदिर पहुंची। और ममता बनर्जी का ये अंदाज है, ममता बनर्जी लोगों के बीच होते हुए न सिर्फ मंदिर पहुंची थी बल्कि ममता बनर्जी सीधे वहां पर भी पहुंची और उन्होंने नामांकन अपना अब से कुछ देर पहले दाखिल कर दिया है। जबरदस्त गहमा गहमी थी। शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के नामांकन के बाद पहली बार सामने आए और उन्होंने जो पहला शब्द कहा वो पहला शब्द ये कहा कि वो तुष्टिकरण करती हैं। लेकिन चित्रा, 22 मंदिरों का दौरा करना, 22 मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना करना, 1000 साल पुराने सिद्ध शिव मंदिर में नामांकन से पहले जाना, क्या ममता का बीजेपी को यह सॉफ्ट नहीं बल्कि हार्ड हिंदुत्व वाला जवाब नहीं है? बिल्कुल सही कहा सईद आपने, ये हार्ड हिंदुत्व वाला ही जवाब है जिसको मंदिर मंदिर जाकर इन तस्वीरों के जरिए ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी को देने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन इस वक्त हल्दिया में मैं पहुंच चुकी हूं। ममता बनर्जी तो सीधे हेलीकॉप्टर से यहां पर आ गई थी, हम लोगों को थोड़ा समय लगा यहां तक पहुंचने के लिए। एसडीएफ ऑफिस में इस वक्त आपको बता दें ममता दीदी का नामांकन चला और यहाँ की तस्वीरें सत्य जरा दिखाइए। आप देखेंगे कि यहाँ पर पीछे की तरफ, दूसरी तरफ यहाँ पर लाइन से लोग लगे हुए हैं ममता बनर्जी की एक झलक पाने के लिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और पीछे तक सुरक्षा
के भी बेहद कड़े इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं और पीछे बिल्कुल नामांकन हो चुका है और पीछे की तस्वीरें ममता बनर्जी चूंकि थोड़ी देर में यहाँ पर निकलने वाली हैं, ये तमाम वो लोग हैं जो उनकी एक झलक पाने के लिए बेकरार नजर आ रहे हैं और इसी वजह से यहाँ पर खड़े हुए हैं। चूंकि उसकी एक पूरी की पूरी प्रक्रिया होती है, दोबारा फॉर्म चेक किए जाते हैं और उसमें किसी भी तरह की कोई गलती ना हो, क्योंकि छोटी सी चूक भी जो भी प्रत्याशी होता है उसके लिए भारी पड़ सकता है। इसीलिए जितने भी पेपर्स जमा किए जाते हैं सही तो उसकी अच्छी तरीके से जांच पड़ताल की जाती है। यही पूरी प्रक्रिया इस वक्त अंदर चल रही है। लेकिन ममता दीदी दफ्तर के भीतर मौजूद है और यहाँ पर बाहर लंबी कतारों में जैसा कि आप देख पा रहे हैं दूर दूर तक यहाँ पर लोग आए हुए हैं उनकी एक झलक पाने के लिए। ज्यादातर इसमें टीएमसी के कार्यकर्ता, लेकिन अपने आप में बेहद दिलचस्प नंदीग्राम में मंदिर जाकर दर्शन करती हैं और उसके बाद यहाँ पर आकर नामांकन करती है। नंदीग्राम ममता बनर्जी के लिए सही इसलिए काफी महत्वपूर्ण क्योंकि 2007 के आंदोलन के बाद देखिए कभी भी पीछे मुड़कर उन्होंने नहीं देखा। इसी वजह से उम्मीद यही है कि तीसरी बार भी हैट्रिक लगाने में वो कामयाब होंगे। सही यह खबर मध्य प्रदेश के उज्जैन से आ रही है। उज्जैन जहां शिप्रा नदी के पानी में पिछले कुछ दिनों से रहस्यमय धमाके हो रहे हैं, पानी से शोले उठ रहे हैं, जोर जोर की आवाजें आ रही हैं, चारों तरफ धुआं ही धुआं उड़ता दिखाई दे रहा है। विशेषज्ञों की टीम ने इसकी जांच की है। ये है क्या ऐसा कैसे वो यही कर रहा था मैं एकदम जमना चालू हुआ। शिप्रा नदी के कल कल बहते जल में आखिर ये कैसा अजूबा हो रहा है? ये है क्या पानी में शोले नजर आ रहे हैं, धमाके पर धमाका हो रहा है। ये है क्या ये उज्जैन में शिप्रा नदी के त्रिवेणी घाट की तस्वीरें हैं, जहां नदी के पानी में धमाकों का वीडियो वायरल हो रहा है। जो भी इसे देख रहा है सकते में आ जा रहा है। उज्जैन का प्रशासन भी इन विस्फोटकों को लेकर हरकत में आ गया। विस्फोटों की वजह जानने के लिए कलेक्टर ने टीम का गठन किया। ये है क्या देखिए, विगत दिनों में जो त्रिवेणी घाट है उसके सामने कुछ विस्फोट, चिंगारी निकलने की, धुआं निकलने की शिकायत प्राप्त हुई थी। कुछ वीडियोस भी आए थे। तो इस संबंध में मेरे द्वारा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से संपर्क किया गया था। उनकी टीम आ गई है और उन्होंने सैंपल्स ले लिए हैं पानी के सेडिमेंटेशन के और जब भी उनकी रिपोर्ट आएगी तो क्लियर हो जाएगा कि किस वजह से ऐसा हुआ था। चश्मदीदों की माने तो पहला धमाका शिप्रा नदी में 26 फरवरी को हुआ था। उसके बाद लगातार ऐसे धमाके देखने को मिल रहे हैं। अचानक जैसे विस्फोट होता है और 15-15 फीट तक मतलब पानी उछल रहा है, धुआं उड़ रहा है, मतलब ऐसा लगा जैसे मतलब किसी बम ने फेंक दिया ऐसे। ये है क्या प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो शिप्रा नदी में जहां धमाका होता है वहां पहले आग दिखती है और धुआं ही धुआं दिखाई देता है। विस्फोट से पानी 10 फीट ऊपर तक उछल जा रहा है। ऐसा कैसे कुछ भी नहीं है। फिर ऐसा है जैसे अंगारे छूटते हैं। वीडियो में ऐसा ही दिख रहा है जैसे अंगारा निकल रहा है अंदर से। शिप्रा नदी में धमाके की जांच करने के लिए जियोलॉजिकल टीम उज्जैन पहुंची। टीम ने यहां वाटर सैंपल लिया। विशेषज्ञों का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही इन धमाकों का रहस्य खुल पाएगा। ऐसी घटना कभी दिखाई नहीं दी और जो वीडियो में भी जो दिखाया गया है तो उससे भी कुछ क्लियर नहीं हो रहा है कि ये जो स्पार्किंग हो रही है ये सरफेस पे हो रही है या पानी में हो रही है। इस तरह का यूं अभी जज कर पाना मुश्किल है, क्योंकि अभी हम फिलहाल पानी की जांच करेंगे और साथ में उस सॉइल की भी जांच करेंगे, तभी हम कुछ बता पाएंगे। ये है क्या प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो शिप्रा नदी में ये धमाके स्टॉप डैम के दोनों तरफ हो रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों में दहशत है। श्रद्धालु यहाँ स्नान करने से भी कतरा रहे हैं। आखिर शिप्रा नदी में क्यों हो रहे हैं ऐसे धमाके? इस सवाल का जवाब अभी जियोलॉजिकल टीम के पास भी नहीं है। संदीप कुलश्रेष्ठ, उज्जैन आज तक। রিজিওনাল প্রেস, ডিস্ট্রিক্ট প্রেস, লোকাল প্রেস সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আজকে আমি নমিনেশন ফাইল করলাম। আমার সাথে আমার নমিনেশনে 4 জন প্রপোজার আছেন। একজন মহাদেব, আরেকজন স্বদেশ দাস, আরেকজন সুষমা শহীদ পরিবারের মেয়ে এবং আরেকজন হচ্ছে আব্দুল সামাদ। 4 জনকে দিয়ে আমার নমিনেশনের প্রপোজাল হয়েছে এবং সুফিয়ান আমার চিফ ইলেকশন এজেন্ট হয়েছে। আমি এই কাজগুলো করে আমি এক্ষুনি বেরিয়ে এলাম। এবার আমার কিছু ছোটখাটো প্রোগ্রাম আছে নন্দীগ্রামে, কিছু ভিজিট আছে, আমি সেখানে যাব, করব,
তারপর আমি কালকে সকালবেলা কলকাতা ফিরে যাব, কারণ যেহেতু কালকে আমাদের ম্যানিফেস্টো আছে। আমি আজকেই চলে যেতে পারতাম, কিন্তু কিছু কিছু রিকোয়েস্ট থাকায় আমাকে সেগুলো একটু অ্যাটেন্ড করতে হবে। থ্যাংক ইউ। দেখুন, আমি একটা কথা বলি, माई फीलिंग्स इज वेरी क्लियर। मेरा फीलिंग्स ये है, अगर भवानीपुर में जो हमारा घर का क्षेत्र है वो हमारा पास कोई टाइम का बात नहीं थे, हम एक दिन टाइम देने से हो जाता है कि हर साल हम हर क्लब के लेकर, हर पूजा कमेटी के लेकर, हर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेकर हमारे साथ एक मोहब्बत प्यार तो है, अभी भी रहेगा। लेकिन नंदीग्राम इज नॉट न्यू प्लेस टू मी। तो जब नंदीग्राम में आंदोलन हुआ था, तब नंदीग्राम में जो लोग लड़ रहा था, बहुत सारे वीर लीडर है मिदनापुर का, तो वो लोगों ने रास्ता में नहीं निकाला था। लेकिन मिदनापुर का नंदीग्राम में जो प्रोग्राम हुआ, चाहे वो 7 मार्च हो, चाहे 10 दिसंबर हो, चाहे 14 मार्च हो, हर दिन हर तरह मैं नंदीग्राम आंदोलन को साथ दिया है। और इसी के लिए मेरे को दिल चाहते थे, जैसे मैं किसान आंदोलन के लिए 26 दिन हंगर स्ट्राइक किया था, 14 डेज हम धरना किया था। इसी के लिए मेरे दिल कभी कभी चाहते थे कि कभी एक दफे हम सिंगूर नहीं तो नंदीग्राम दोनों से एक हम कंटेस्ट करें। तो नंदीग्राम हमारा याद में आया। जब लास्ट टाइम हम मीटिंग में आया तो मैंने पूछा, क्या तब तक उधर में एमएलए नहीं था? यू नो द एमएलए दैट टाइम रिजाइंड, सो सीट वाज टोटल वेकेंट। सो आई आस्क्ड देम, अगर हम कंटेस्ट करें तो ठीक है? तो देन दे शाउटेड लाइक एनीथिंग एंड दे गेव मी फुल सपोर्ट because of their inspiration, because of their energy, because of their full support. I thought Nandigram is not only a slogan to me, Nandigram is a place where Kishan movement, agro movement build up from here. And so I salute to all the people who died, who are murdered, who are missing till now. But I salute to people of Nandigram. আমি স্যালুট করছি এই কারণে যে আমি অনেক সময় বলি भूलते पारी निजे नाम भूलबो ना को मैं अब तक बोलती हूँ कि मैं अपना नाम भूल सकती हूँ, लेकिन नंदीग्राम का नाम नहीं भूल सकती हूँ, क्योंकि नंदीग्राम का एक और नाम है संग्राम। संग्राम मैं स्ट्रीट फाइटर रही हूँ। and I hope Nandigram people will be very happy এবং they will vote for me and नंदीग्रामेर মা ভাই বোনেরা সবাই মিলে नंदीग्राम के माँ भाई बहने सभी लोग मुझे याद रखें और ये याद रखें कि हमारी जीत होगी। और जो लोग कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, जो नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं हमारे लिए, सबके लिए मेरी शुभेच्छा। बगल में खेजूरी है, हल्दिया है, पटासपुर है, भगवानपुर है, एगरा है, तमलुक, सुताहाटा है, काथी दक्षिण उत्तर है। सबके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। ममता बनर्जी ने एक बार फिर से वही बातें कही हैं पुरानी वाली। नंदीग्राम से उनका रिश्ता, नंदीग्राम के लिए आंदोलन, नंदीग्राम के किसानों के लिए आंदोलन, नंदीग्राम के किसानों के लिए भूख हड़ताल। और ममता बनर्जी बार बार ये याद दिलाना नहीं भूल रही हैं कि नंदीग्राम का मैंने साथ दिया था, नंदीग्राम जब मुसीबत में था मैं उनके साथ खड़ी हुई थी, नंदीग्राम पर जब अत्याचार हो रहा था मैं उस अत्याचार के खिलाफ लड़ी थी, मुश्किलों से यहाँ पर पहुंची थी। तो ये 3 तस्वीरें यहाँ पर आपके सामने। ममता बनर्जी नामांकन पत्र दाखिल कर चुकी हैं और नॉमिनेशन सेंटर वो पहुंची थी पैदल, और उससे पहले उन्होंने प्रसिद्ध सिद्ध शिव मंदिर में पूजा अर्चना की थी। आइए एक बार हम आपको फिर से सुनवाते हैं ममता की बात। का बात नहीं थे, हम एक दिन टाइम देने से हो जाता है कि हर साल हम हर क्लब के लेकर, हर पूजा कमेटी के लेकर, हर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेकर हमारे साथ एक मोहब्बत प्यार तो है, अभी भी रहेगा। लेकिन नंदीग्राम इज नॉट न्यू प्लेस टू मी।
जब नंदीग्राम में आंदोलन हुआ था, तब नंदीग्राम में जो लोग लड़ रहा था, बहुत सारे लीडर है मिदनापुर का, तो वो लोगों ने रास्ता में नहीं निकाला था। लेकिन मिदनापुर का नंदीग्राम में जो प्रोग्राम हुआ, चाहे वो 7 मार्च हो, चाहे 10 दिसंबर हो, चाहे 14 मार्च हो, हर दिन हर तरह मैं नंदीग्राम आंदोलन को साथ दिया है। और इसी के लिए मेरे को दिल चाहते थे, जैसे मैं किसान आंदोलन के लिए 26 दिन हंगर स्ट्राइक किया था, 14 डेज हम धरना किया था। इसी के लिए मेरे दिल कभी कभी चाहते थे कि कभी एक दफे हम सिंगूर नहीं तो नंदीग्राम दोनों से एक हम कंटेस्ट करें। तो नंदीग्राम हमारा याद में आया। जब लास्ट टाइम हम मीटिंग में आया तो मैंने पूछा, क्या तब तक उधर में एमएलए नहीं था? यू नो द एमएलए दैट टाइम रिजाइंड, सो सीट वाज टोटल वेकेंट। सो आई आस्क्ड देम, अगर हम कंटेस्ट करें तो ठीक है? तो देन दे शाउटेड लाइक एनीथिंग एंड दे गेव मी फुल सपोर्ट बिकॉज ऑफ देयर इंस्पिरेशन, बिकॉज ऑफ देयर एनर्जी, बिकॉज ऑफ देयर। सुना ममता बनर्जी को आपने। हम हल्दिया आपको लिए चलते हैं। हल्दिया से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं हमारी सहयोगी चित्रा। और ये ममता दीदी का पूरा काफिला आप देख पा रहे हैं जिस तरह से आगे की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ममता दीदी अपनी गाड़ी में है। उन्होंने नंदीग्राम की जनता से अपील की है कि जिस तरह का संग्राम उन्होंने किया था, जिस तरह की लड़ाई लड़ी थी, जिस तरह का आंदोलन उन्होंने लड़ा था, अब नंदीग्राम से वो लड़ना भी चाहती थी। सिंगूर का भी उन्होंने जिक्र किया और लोगों से अपील की कि वो उनके पक्ष में मतदान करें। जिस तरह की बातें वो कहती हुई नजर आई। ये ममता दीदी का पूरा काफिला जो यहाँ से गुजरता हुआ एसडीओ ऑफिस से आपको दिखाई दे रहा है। अपने आप में काफी ज्यादा अहम आज का दिन ममता बनर्जी के लिए। जैसा कि आप सुन रहे थे हमारे तमाम दर्शकों की ओर से, उन्होंने सामने जो बातें रखी हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण, बार बार वो आंदोलन का जिक्र करती हुई भवानीपुर से वो नंदीग्राम क्यों आ गई चुनाव लड़ने के लिए। तो उनकी ओर से कहा गया कि मैं सिंगूर या नंदीग्राम से चुनाव लड़ना चाहती थी, ये जगह मेरे लिए नई नहीं है। आपको बता दें ये तमाम बातें ममता दीदी इसलिए कह रही है क्योंकि बीजेपी की ओर से शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम को लेकर बाहरी होने के आरोप उनके ऊपर मढ़ रहे हैं। इसी वजह से ममता बनर्जी ने ये तमाम बातें कही। अपना संबोधन खत्म किया। नंदीग्राम से नामांकन क्यों उनकी ओर से दाखिल किया गया उसका जिक्र करने के बाद ममता बनर्जी का ये काफिला अब आगे की ओर बढ़ता हुआ यहाँ से फिर नंदीग्राम वो पहुंचेंगी। कल भी उनका नंदीग्राम का कार्यक्रम है और उसके बाद फिर आगे के प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जाकर 294 जिन जिन सीटों पर उन्होंने अपने उम्मीदवारों को उतारा है उन सभी के पक्ष में वो मतदान की अपील करेंगी। लेकिन ममता बनर्जी के लिए यकीनन ये संकट की घड़ी है क्योंकि शुभेंदु अधिकारी उनके सामने है। भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से चुनावी मैदान में है। ऐसे में ममता बनर्जी नंदीग्राम से जो दावा टीएमसी की ओर से किया जा रहा है कि 1 लाख से ज्यादा मतों से वो शुभेंदु अधिकारी को हरा देंगी, या फिर शुभेंदु अधिकारी आज ही जब वो सामने आए अपने नए दफ्तर का उद्घाटन किया और उसके बाद जब वो बाहर निकल रहे थे तो उनकी ओर से कहा गया कि दरअसल ममता बनर्जी यहाँ पर हार जाएंगी और 2 तारीख को मेरे घर आए मिठाई खाने के लिए मेरी जीत का। तो आगे क्या होगा महत्वपूर्ण है। लेकिन देखिए ये तमाम लोग जो ममता बनर्जी को सुनने के लिए आए थे, कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? हेलो, आप लोग मीरपुर से आ रहे हैं। अच्छा, दीदी को देखने के लिए? हाँ, दीदी के जीतेंगे, दीदी हारेंगे? जीतेंगे, शुभेंदु में हराएंगे। क्या काम किया है दीदी? जीतेंगे दीदी। क्या काम किया है दीदी ने सबसे अच्छा काम किया है? शुभेंदु अधिकारी है शुभेंदु चोर है। नहीं ऐसी भाषा नहीं बोले, ऐसी भाषा। दीदी यहाँ 700 किया है। बीजेपी कह रही है नंदीग्राम में बाहरी है। अच्छा, आराम से एक एक करके बच्चे से लेके बूढ़े तक, मतलब मरने तक सबके लिए काम खेला होगा परिवार। एक नंबर काम किया। शुभेंदु अधिकारी चोर होने कैसे? नहीं, गलत भाषा नहीं। ये देखिए ये टीएमसी के कार्यकर्ता हैं, इनका ये दावा। अच्छा चित्रा, ये बताइए, चित्रा सुन पा रही हैं? बहुत भीड़ है वहां पर। क्या हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? शोर बहुत है, भीड़ बहुत है। चित्रा लाइव है हमारे साथ, लेकिन बेहद ज्यादा भीड़, शोर शराबा बहुत ज्यादा। सुन पा रही हैं चित्रा, ये बताइए और बात करें आपसे। ममता बनर्जी के इमोशनल कार्ड के बारे में आपसे बात करें, क्योंकि लगातार कह रही हैं, आज भी उन्होंने कहा, याद दिला दिया सारा, मैंने किसानों के लिए आंदोलन किया था, मैं अपना नाम भूल जाऊंगी, कभी भी सिंगूर का नहीं भूल सकती।
ये बताइए आज का कार्यक्रम क्या है और क्या क्या कर रही है ममता बनर्जी यहाँ पर, और वो जो इनका ये इमोशनल कार्ड है और शुभेंदु अधिकारी पर कुछ नहीं बोल रही हैं, इसका क्या फायदा मिलेगा उन्हें? देखिए, बोलेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं बोलेंगे। अभी चूंकि ये नामांकन का दिन था, इस वजह से मैं चाहूंगी कि सत्या आप थोड़ी इधर आइए। ये पीछे देखिए, तमाम लोग ममता बनर्जी को देखने सुनने के लिए आए थे। अब यहाँ से तमाम वो लोग निकल रहे हैं ममता दीदी की एक झलक पाने के लिए। जो खड़े हुए थे खासतौर से टीएमसी के कार्यकर्ता, हम लोगों की भी इसमें मौजूदगी है। लेकिन अपने आप में काफी ज्यादा अहम आज का दिन ममता बनर्जी के लिए। देखिए, शुभेंदु के लिए गुस्सा आपको दिखाई दे रहा है लोगों में वहाँ पर? बीजेपी पर हमलावर है, बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर मिली जुली, हालांकि ज्यादातर आपको टीएमसी के लोग यहाँ पर दिखाई देंगे, कुछ आम लोग भी हैं जो ममता बनर्जी की जीत के दावे कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही आपको ये भी बता दें सईद कि यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हमको मिले जो ममता बनर्जी को देखने के लिए तो आए हैं, लेकिन जब ये पूछा गया कि कौन जीतेगा तो उनका कहना है कि बीजेपी। कुछ लोगों का कहना है कि लड़ाई कांटे की है, तो कुछ ऐसे हैं जो मानते हैं कि ममता बनर्जी हैट्रिक लगाने में कामयाब होंगी। ऐसे में आगे क्या होगा ये महत्वपूर्ण है। अधिकारी के बारे में क्या राय है लोगों की? अधिकारी को कुछ नहीं बोलना चाहती क्योंकि बीजेपी के बड़े चेहरे उनके निशाने पर रहते हैं। सईद अपना सवाल दोहराएंगे? शुभेंदु अधिकारी क्योंकि यहीं से जीते हैं और जबरदस्त जीत थी, लगभग 67% वोट उन्हें मिले थे। अब वो टीएमसी छोड़कर बीजेपी में चले गए हैं, तो वहीं के, तो लोग क्या कह रहे हैं, लोगों की क्या राय है उनके बारे में? वही लोग जिन्होंने उन्हें वोट दिया था। भाई टीएमसी वालों ने वोट दिया था ना चित्रा। महत्वपूर्ण है, टीएमसी की ओर से कहा जाता है कि इतनी बड़ी जीत, बिल्कुल इतनी बड़ी जीत जो शुभेंदु अधिकारी को मिली थी, उसके पीछे टीएमसी के लोग थे। उनका ये कहना है कि टीएमसी का वो कार्डर था, टीएमसी के वोट थे जो शुभेंदु को मिलते थे, लेकिन अब वही ममता बनर्जी के पक्ष में वोट करेंगे। कुछ लोग हमारे साथ हैं, सीधे इन्हीं से हम, चूंकि जनता जनार्दन ही भगवान होती है, मत पूछिए ना चित्रा को, फिर वो गलत भाषा का इस्तेमाल करते हैं। आप बताइए चित्रा। बिल्कुल नहीं, लेकिन गलत भाषा से नहीं। ये बताइए कौन जीत रहा है, शुभेंदु दा या फिर दीदी? दीदी जीतेगा। दीदी अच्छा काम, दीदी अच्छा काम, एकदम बहुत अच्छा काम किया। डेवलप 2-3 काम बताइए आप। देखिए 20-25-30 साल पहले आप रोड देखिए और इस आप रोड देखिए, हॉस्पिटल देखिए, कहीं डेवलपमेंट का दूसरा नाम ही ममता बनर्जी है। लेकिन नंदीग्राम से तो शुभेंदु अधिकारी बड़े मार्जिन से जीती थी पिछली बार। वो ममता बनर्जी जिताया था, वो ममता बनर्जी का फेस नहीं जिताया था। उस टाइम उसको जिताए थे जो उस टाइम तीनों मिल में थे। इस बार बीजेपी में है तो आप बीजेपी में वो गद्दारी करके ठीक है, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे किसी के लिए घर बोलिए बताइए। लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने हम रोक लेते हैं आपको क्योंकि लोग हैं, लोगों की भावनाएं हैं। चित्रा हमारी संवाददाता, हमारी सहयोगी लगातार वहां पर बनी हुई हैं। आज हलचल वाला दिन है पश्चिम बंगाल में और खास तौर से ममता बनर्जी के नॉमिनेशन को लेकर जबरदस्त सुबह से हलचल वहां पर चल रही है।